को हम धन्यवाद करें, उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करें और उसके उपकारों को स्मरण करके हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें और धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना अच्छा लगता है और शोभा देता है। और हमारा परमेश्वर सारी स्तुति, महिमा और आदर और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आओ हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, इस सुबह के सुंदर समय फिर से एक बार आपने हमें समय दिया और प्रभु पिता हालेलुया, हमें आपने पूरा हफ्ता संभाला, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु परमेश्वर, मंडे से लेकर संडे तक तूने हम सबको, हमारे सारे परिवारों को तूने संभाल के रखा। इस कारण मैं आपकी स्तुति और महिमा और सम्मान करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज की इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं। जितने भी भाई बहन प्रभु परमेश्वर इस समय जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सबों का परिवार प्रभु परमेश्वर, उनका जीवन, प्राणात्मा, शरीर तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। और आज की प्रार्थना सभा तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता कर। तेरा पवित्र आत्मा हम सबों के दिलों और दिमाग का ताबा ले और मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको हमारे सारे पाप और अपराधों की क्षमा कर। हमने तेरे विरोध में जाने अनजाने में जो कोई पाप किया हो प्रभु पिता, हमें क्षमा कर। और प्रभु पिता, हमारे ऊपर आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेल दे मेरे प्रभु पिता, और तेरी शांति और तेरी उपस्थिति हर घर में प्रभु, हर दिल में प्रभु परमेश्वर उतर आ जाए। प्रभु इस समय गाने के सभा चलाने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सबों पर तेरा आशीर्वाद और अभिषेक मांगता हूँ। इस प्रार्थना सभा के दौरान जितने भी भाई बहन बीमार होंगे, तकलीफ में, परेशानी में होंगे, उन्हें छू ले और प्रभु परमेश्वर उनके सारे बंधनों को प्रभु यीशु तू तोड़। और मेरे प्रभु पिता, उनके परिवार को, उनके काम धंधे को, उनके आत्मिक जीवन को तू आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना और विनती करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. கடந்த வாரமும் கண்மணி போல காத்து இம்மட்டுமாய் இந்த வேளையிலே பரிசுத்த ஆராதனையிலே நம்மை கொண்டு வந்த மகா கிருபைக்காக தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்த, தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். எத்தனையோ ஹல்லேலூயா பாடுகள், அத்தனையோ காரியங்கள் மத்தியிலும் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பாதுகாத்து இம்மட்டுமாய் இந்த பரிசுத்த ஆராதனை கொண்டு வந்த ஹல்லேலூயா துதிப்போம். துதித்து தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு சில தமிழ் பாடல்களை பாடுவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Thank you Father. நன்றி. எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். விடுதலையின் கீதங்கள்ல 83வது பாடல். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். எல்லோரும் தெரிந்த பாடல். எல்லோரும் கைகளை தட்டி தேவ சமூகத்திலே ஹல்லேலூயா ஆராதிப்போம். உள்ளத்தில் ஆழத்திலிருந்து நாம் இந்த பாடலை படிப்போம். ஆமென். ஹல்லேலூயா ஜீசஸ். ஆமென். மனவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே, நல்லதொரு போராட்டமே. வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே, நல்லதொரு போராட்டமே. ஆவிதரும் பட்டயத்தை, ஆவிதரும் பட்டயத்தை எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு, எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகளே. பிரயாணத்தில் மேடு உண்டு, பள்ளங்களும் உண்டு. பிரயாணத்தில் மேடு உண்டு, பள்ளங்களும் உண்டு. நீ
மிதித்திடுவாய் தாண்டிடுவாய், மிதித்திடுவாய் தாண்டிடுவாய். மாண்டாங்கள் உனக்குண்டு மறவாதே, மாண்டாங்கள் உனக்குண்டு மறவாதே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகளே. ஒருங்கின்படி ஓடு மகளே, ஓட்ட பந்தயம் நீ ஓடுகிறாய், ஒருங்கின்படி ஓடு மகனே. நெருங்கி வரும் பாவங்களை, நெருங்கி வரும் பாவங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடு மகனே, உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடு மகளே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகளே. நீ ஓடுகிறாய், ஒழுங்கின்படி ஓடு மகனே. ஓட்ட பந்தயம் நீ ஓடுகிறாய், ஒழுங்கின்படி ஓடு மகளே. நெருங்கி வரும் பாவங்களை, நெருங்கி வரும் பாவங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடு மகனே, உதறி தள்ளிவிட்டு ஓடு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே. பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகளே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. நமது குரூப்ல இப்ப அனுப்பி வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கு. எந்தன் தேவனால், எந்தன் தேவனால். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் ஆராதனை பாடல். ஹல்லேலூயா. சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம். நன்றி நன்றி படிப்போம். ஹல்லேலூயா. சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம். ஆண்டவரே கணம். ஹல்லேலூயா. சோத்ரம். எந்தன் தேவனால், எந்தன் தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். எந்தன் தேவனால், எந்தன் தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான். உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எந்தன் தேவனான், எந்தன் தேவனான் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். தேசத்தில் நான் ஆசீர்வாதமாய், தேசத்தில் நான் ஆசீர்வாதமாய் எந்தன் வீட்டில் ஆகார குறைவில்லையே, எந்தன் தேவைகள் ஒன்றும் தடையில்லையே. தேசத்தில் ஆயிருப்பேன், ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன். என் வீட்டில் இருப்பேன், ஆசீர்வாதமாயிருப்பேன்.
எந்தன் தேவனால் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். எந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேன் நான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேன் நான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். எனக்கு எதிராய் வரும் ஆயுதமெல்லாம் நிர்மூலமாய் போய்விடும் எந்தன் தேவனால். எனக்கு எதிராய் வரும் ஆயுதமெல்லாம் நிர்மூலமாய் போய்விடும் எந்தன் தேவனால். என் பலன் ஆரோக்கியம் தேவதானமே, எந்தன் சரீரம் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கும். எந்தன் தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். இந்த வசனம் கை கொள்ளுவேன் நான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேன், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். வாழ்க்கை துணையும் பிள்ளைகளும் எந்தன் சம்பந்தம் ஆசீர்வதிக்கும். வாழ்க்கை துணையும் எந்தன் பிள்ளைகளும் எந்தன் சம்பந்தம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். எந்த நன்மைக்காய் செழித்தோங்கிடுவார், என்னை அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்த நன்மைக்காய் செழித்தோங்க செய்வார், எந்த அவர் பரிசுத்த ஜனமாக்குவார். எந்த தேவனா நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதி பெற்றுக் கொள்வேன். எந்த தேவனாம் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேன் நான், உந்தன் வழிகளில் நடந்திடுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்வேன் நான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். என்றும் கடன் வாங்க விட மாட்டார், கொடுப்பதை செழித்தோங்க செய்திடுவார். இனி என்றும் கடன் வாங்க விட மாட்டார், கொடுத்ததை செழித்தோங்க செய்திடுவார். உயர்வடைவேன் என் வாழ்க்கையிலே, உன்னதங்களில் என்னை உயர்த்திடுவார். உயர்வடைவேன் என் வாழ்க்கையிலே, உன்னதங்களில் என்னை உயர்த்திடுவார். எந்தன் தேவனான் நிச்சயம் நான் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுவேன். எந்தன் வசனம் கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். உந்தன் வசனம் கை கொள்ளுவேனான், உந்தன் வழிகளில் நான் நடந்திடுவேன். ஹல்லேலூயா. கடைசியாக ஒரு தமிழ் பாடலை பாடுவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம் சோத்திரம். விடுதலை கீதங்கள்ல 64வது பாடல், நான் நேசிக்கும் தேவன் நேற்றும் இன்றும் என்றும். ஹல்லேலூயா. சோத்திரம். நாளை என்றும் மாறாதவர். எல்லாம் தெரிந்த பாடல். விடுதலை கீதங்கள்ல 64வது பாடல், நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு இன்று ஜீவிக்கிறார். ஆமென். ஆமென். ஜீவிக்கிறார் அவர் ஏற்றும் என்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர். ஏற்றும் என்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன்,
பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். கடலாம் துன்பத்தில் தவிக்கும் நிலையில் படகாய் வந்திடுவான். கடலாம் துன்பத்தில் தவிக்கும் நிலையில் படகாய் வந்திடுவான். இருதனிலே பகலவனாய் இயேசுவே ஒளி தருவான். இருதனிலே பகலவனாய் இயேசுவே ஒளி தருவான். நான் அடிமையில் விடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். பாவ நோயாளி வாடும் நேரத்தில் மருத்துவராகிடுவார். பாவ நோயாளி வாடும் நேரத்தில் மருத்துவராகிடுவார். மயங்கி விழும் பனிதனிலே மன்னாவை தந்திடுவார். மயங்கி விழும் பசிதனிலே மன்னாவை தந்திடுவார். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். தோற்றும் மந்தரி நடுவில் எந்தனை தீர்த்திட வந்திடுவான். தோற்றும் மந்தரி நடுவில் எந்தனை தீர்த்திட வந்திடுவான். கால் தளர ஊண்டுகோளாய் காத்திட வந்திடுவான். கால் தளர ஊண்டுகோளாய் காத்திட வந்திடுவார். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன். நேசர் என்னோடு துணையாய் ஜீவிக்க நாடினி கலங்கிடனே. நேசர் என்னோடு துணையாய் ஜீவிக்க நாடினி கலங்கிடனே. எந்தனுக்கே காவலவர் நானுடலவர் உயிரே. எந்தனுக்கே காவலவர் நானுடலவர் உயிரே. நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திருப்பேன். நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு என்றும் ஜீவிக்கிறார்.
அவனேற்றும் என்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர். அவனேற்றும் என்றும் நாளை என்றும் மாறாதவர். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். நான் பாடி மகிழ்ந்திடுவேன், என் இயேசுவை துதித்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். என் ஜீவிய காலமெல்லாம் அவர் பாதத்தில் அமர்ந்திடுவேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. न्यू बुक सॉन्ग नंबर 1, आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। मारा गया तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। बादलों पर यीशु आएगा, हम सबको वो ले जाएगा। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। फिर क्यों ना बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे।
Jesus. Hallelujah. Let us worship the Lord. Song number 51, new song book, नया गाना का पुस्तक, song number 51, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो. दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है यीशु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा. मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, है प्रभु तू ही तू. तेरी स्तुति मैं करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा. खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और
सांसों में Oh
Come on, everybody sing with me. Yeshu Naam, 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 जिस नाम में, sing with me, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। हाँ प्रभु, तेरे नाम से हमें पापों की क्षमा मिली है। तेरे नाम से हमें उद्धार मिला है। तेरे नाम से प्रभु यीशु हमें कृपा और अनुग्रह मिला है। और हम तेरे ही नाम से प्रभु पिता दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु पिता, जितने भी लोग तेरे सामने तेरे उपस्थिति में बैठे हैं, इन सब के जीवन की ओर मैं अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और तेरा अभिषेक और तेरा सामर्थ्य प्रभु इन लोगों पर मांगता हूँ। स्वर्गीय आशीषों से तो इन्हें भर दे प्रभु परमेश्वर। सारे आपत्ति विपत्ति से प्रभु इनकी रक्षा करना मेरे प्रभु पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार मसीह कलीसिया से जुड़े इस सारे परिवारों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इन परिवारों का भला हो प्रभु, ये लोग सुरक्षित रहें, ये लोग प्रभु परमेश्वर अपने परिवार सहित प्रभु परमेश्वर हालेलुया एक ऐसा आत्मिक जीवन बिता जिससे प्रभु तेरी महिमा हो मेरे प्रभु पिता। हालेलुया, ये सारे लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति और आराधना करने वाले लोग बने मेरे प्रभु पिता। हालेलुया मेरे प्रभु पिता, हमारे जीवन में प्रभु पिता तू अपना सामर्थ्य प्रकट कर इन दिनों में प्रभु। इस संकट के खड़े में जिस समय से लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके सारे प्रभु परमेश्वर चीजों में, उनके हर एक हालात में, उनके दुख संकट में संग रहकर उनका परमेश्वर होकर, उनका सांत्वन करने वाला परमेश्वर होकर, उनके लिए प्रभु परमेश्वर तो एक चरवाह होकर मेरे प्रभु हालेलुया उनके लिए प्रभु एक हालेलुया मेरे प्रभु पिता और माँ के समान प्रभु परमेश्वर तो इन सबों के साथ प्रभु अपना प्यार जता दे प्रभु परमेश्वर। तेरा प्यार, तेरी शांति, तेरी प्रभु परमेश्वर दया इन सब लोगों पर तो उंडेल दे। ऐसी प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता, प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। साम 112 112। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। அவன் சந்ததி பூமியிலே பலத்திருக்கும்,
வம்சம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा. செம்மையானவர்களுக்கு இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும். அவன் இரக்கமும் மனதுருக்கமும் நீதியும் உள்ளவன். जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है. वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा. அவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருப்பான். நீதிமான் நித்திய கீர்த்தியுள்ளவன். वह बुरे समाचार से नहीं डरता. उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है. அவன் இருதயம் உறுதியாய் இருக்கும். அவன் தன் சத்துருக்களில் சரிக்கட்டுதலை காணும் மட்டும் பயப்படாதிருப்பான். उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया. उसका धर्म सदा बना रहेगा. उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा. सब साथ मिलकर. दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा. वह दांत पीसकर जल जाएगा. दुष्टों की लालसा पूरी துன்மார்க்குடைய ஆசை அழிக்கும். ஆமென் ஆமென் ஆமென். गवाही का समय है. हम प्रभु की महिमा के लिए अपनी गवाही देंगे. Okay, go ahead, brother. ஆடியோ செக் பண்ணிக்காங்க வருவாங்க. Let your work be shown to your people and your glorious power to their children. Psalm 90 verse 16. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. Psalm 128, 1. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. Even if you make your dwelling the Most High, even the Lord, who is my refuge. Psalm 91, verse 8 to 9. Come to me and I will answer thee and show thee correct and motive watch क्या बोल दो? not, for I will pour water upon him that is tasty and foods upon the dry ground. I will pour my spring upon thy seed and my blessing upon thy offspring. Isaiah 44:3. यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे. हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है. ये तो यहोवा की ओर से हुआ है. ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है. ये आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है. हम इसमें मगन और आनंदित हो. हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर. हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे. Psalm 118 verses 20, 21, 22, 23, 24 and 25. Wow. The gate of the Lord, only the righteous can come in. I praise you, Lord, because you hate me, because you have given me victory. The stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all. This was done by the Lord. What a
what a wonderful sight it is. This is the day of the Lord's victory. Let us be happy. Let us celebrate. Save us, Lord. Save us. Give us success, O Lord. Psalm 118 verse 20, 21, 22, 23, 24, and 25. Praise God. Very good. Okay. Praise God. Hallelujah. वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे and we'll ask the help of the Holy Spirit. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ सारी गवाहियों के लिए और सारी चीजों के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय तेरे वचन से सुनने और सुनाने का समय प्रभु परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा और सम्मान मैं तुझे देता हूँ और प्रभु परमेश्वर तेरी प्रशंसा करता हूँ। तेरे लोगों से प्रभु बोलने के लिए मुझे तेरे वचन से प्रभु परमेश्वर सहायता कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कर और मेरे होठ और जुबान को छू ले। हर एक शब्द प्रभु जो मेरे मुख से निकलेगा पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकले। पवित्र आत्मा पूर्णतः मेरा ताबा, मेरा नियंत्रण में तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ और जो भी मेरे भाई बहन तेरे वचन को सुनेंगे उनके प्रभु परमेश्वर उनकी तू सहायता कर और ये वचन और तेरे लोगों के लिए प्रभु हालेलुया आशीषित हो, आशीष देने वाला बने और तेरे ये वचन तेरे लोगों से दिलों से बातें करे और तेरे लोग प्रभु परमेश्वर और भी मेरे परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित हो और विश्वास में प्रभु परमेश्वर हम सब मजबूत हो। इन दिनों में इसी प्रार्थना विनती करता हूँ यीशु के नाम से, आमेन। Praise God. Okay. Book of Hebrew, chapter 11, or we'll read from 29 onwards. 29 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। 29 to 40, read in Tamil. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை உலர்ந்த தரையை கடந்து போவது போல கடந்து போனார்கள். எகிப்தியர் அப்படி செய்ய துணிந்து அமிழ்ந்து போனார்கள். விசுவாசத்தினாலே எரிகோ பட்டணத்தின் மதில்கள் 7 நாள் சுற்றி வரப்பட்டு விழுந்தது. விசுவாசத்தினாலே ராகாப் என்னும் வேசி வேவுகாரரை சமாதானத்தோட ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாது இருந்தாள். பின்னும் நான் என்ன சொல்லுவேன்? கிதியோன், பாராக், சிம்சோன், யெப்தா, தாவீது, சாமுவேல் என்பவர்களையும் தீர்க்கதரிசிகளையும் குறித்து நான் விவரம் சொல்ல வேண்டுமானால் காலம் போதாது. விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் ராஜ்யங்களை ஜெயித்தார்கள், நீதியை நடப்பித்தார்கள், வாக்கு தத்தங்களை பெற்றார்கள், சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள், அக்கினியின் உக்கிரத்தை அவித்தார்கள், பட்டய கருகுக்கு தப்பினார்கள், பலவீனத்தில் பலன் கொண்டார்கள், யுத்தத்தில் வல்லவர்களானார்கள், அந்நியருடைய சேனைகளை முறியடித்தார்கள், ஸ்திரீகள் சாக கொடுத்த தங்களுடையவர்களை உயிரோடு எழுந்திருக்க பெற்றார்கள். வேறு சிலர் மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலை அடையும்படிக்கு விடுதலை பெற சம்மதியாமல் பாதிக்கப்பட்டார்கள். வேறு சிலர் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள். கல்லெறி உண்டார்கள், பாலால் அறுப்புண்டார்கள், பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள், பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மரித்தார்கள், செம்மறியாட்டு தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் போர்த்து கொண்டு திரிந்து குறையையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள். உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமாய் இருக்கவில்லை. அவர்கள் வனாந்தரங்களிலேயும் மலைகளிலேயும் கொகைகளிலேயும் பூமியின் வெடிப்புகளிலேயும் சிதறிண்டு அலைந்தார்கள். இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள். அவர்கள் நன்மை அல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானது ஒன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார். ஆமென். Amen. Praise God. हालेलुया। गए 1 महीने से हम लोग विश्वास के योद्धाओं के बारे में सुन रहे हैं और प्यारे भाई और बहनों, ये सारी बातें और ये विश्वास के योद्धाओं को परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया और उनका जीवन हमारे साथ बातें करता है
उनका जीवन हमारे लिए हमारे आशीष के लिए रखा हुआ है, उनके उदाहरण हमारे लिए लिखे हुए हैं। और हम जब भी इस बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन, ये वचन तुम्हारे लिए, हमारे लिए अंतिम दिनों में हमारे विश्वास के बढ़ोतरी के लिए और विश्वास के बढ़ाई के लिए, बढ़ने के लिए ये वचन हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो आज देखेंगे कि गए संडे हमने देखा कि किस तरह मोसेस बड़ा हुआ, तो उसने फारो का और उसकी बेटी का पुत्र कहलाने का जो हक था उसने छोड़ दिया, पुत्र कहलाने का इनकार कर दिया, और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए उसने वो तैयार हो गया। वो कहते हैं कि थोड़े दिन का सुख भोगने से अच्छा कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगे, और मसीह के कारण निंदित होने को उसने मिस्र के भंडार से ज्यादा बड़ा धन समझा। ये इसमें से हमने बहुत कुछ बातें सीखी थी कि प्यारे भाई और बहनों, किस तरह हमें इस दुनिया की अभिलाषाओं को, दुनिया की सारी बुराइयों को हमें ठुकराना है। जो बातें हमें भलाई की लगती है, जो बातें हमें अच्छी लगती है, जो बातें हमें फायदे के होती हैं, पौलुस कहता है कि जो बातें मेरे लिए लाभ की हुआ करती थी उसको मैं कूड़ा कचरा समझता हूं। फिलिप्पी की पत्री में इसने लिखा है कि जो बातें मेरे लिए लाभ की होती थी या लाभ मुझे पहुंचा सकती थी, उन बातों को मैंने ठुकरा दिया और मैं मसीह के पीछे चलता हूं ताकि वो जीवन और वो मुकुट मैं प्राप्त कर सकूं। तो प्यारे भाई और बहनों, ये सारे लोग, इनका उदाहरण तुम्हारे लिए, मेरे लिए रखा हुआ है कि हम इन अंतिम दिनों में इनके बारे में पढ़कर और सुनकर विश्वास करें और विश्वास में मजबूत रहे, और जैसे परमेश्वर ने उनको प्रतिफल दिया, परमेश्वर हमें भी वही प्रतिफल देगा। तो यहां हम देखते हैं आगे 29 वचन में कि विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने ऐसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आगे बढ़ने से पहले हम इन चीजों को फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे और अपना मन रिफ्रेश करेंगे कि कैसे विश्वास के द्वारा लाल समुद्र के पार वो उतर गए। हम जाएंगे बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14। निर्गमन की किताब, और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उनके लिए सारी सृष्टि के इतिहास में बहुत अद्भुत काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 21 to 31। हम सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम या बीच में मत बोलो। ओके, 14 वचन कौन सा? वचन फ्रॉम 21 to 31 ब्रदर। ओके। மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் ராம் முழுதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிட்டு இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள். அவர்கள் வலதுபுறத்திலும் அவர்கள் இடதுபுறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. அப்பொழுது எகிப்தியர் அவர்களை தொடர்ந்து பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலே சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள். कितना 31 तक है? 31। கிழக்கு வெளுத்தோறும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனையை கலங்கடித்து அவர்களுடைய ரதங்களிலிருந்து உருளைகள் கலலவும் அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோட நடத்தவும் பண்ணினார். அப்பொழுது எகிப்தியர் இஸ்ரவேலரை விட்டு ஓடி போவோம், கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, ஜலாம் எகிப்தியர் மேலும்
அவருடைய ரதங்கள் மேலும் அவருடைய குதிரை வீரர்கள் மேலும் திரும்பும்படிக்கு உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு என்றார். அப்படியே மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். விடியற் காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது. எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது கர்த்தர் அவர்களை கடலின் நடுவே கவிழ்த்து போட்டார். ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரர்களையும் அவர்கள் பின்னாக சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வோனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் மூடிக்கொண்டது. அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை. இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள். அவர்கள் வலதுபுறத்திலும் அவர்கள் இடதுபுறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. இவ்விதமாய் கர்த்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலியரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரட்சித்தார். கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடைக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள். கர்த்தர் எகிப்தியரில் செய்த அந்த மகத்தான கிரியை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசேயிடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள். ஆமென். Amen. Praise God. This is the greatest and the miraculous miracle. ऐसा हम कहेंगे, एक अद्भुत ऐसी सृष्टि की घटना जिस परमेश्वर ने अपने लोगों के खातिर ऐसा अद्भुत कार्य किया कि जो इंसान के बुद्धि से पार है, इंसान की बुद्धि में वो समा नहीं सकता है और वो सोच विचार में भी आ नहीं सकता है। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम अपने लोगों के लिए किया विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा मोसेस ने ऐसा काम परमेश्वर के द्वारा किया क्योंकि मूसा ने परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया और वो विश्वास जिस वजह से परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट हुई और परमेश्वर ने वो अद्भुत काम किया जो किसी भी जाति के लिए परमेश्वर ने आज तक नहीं किया है। हालेलुया। जिस तरह ये इजरायली लोग इस लाल समुद्र के बीच में से पार हुए अद्भुत रीति से कि प्रचंड हवा, तेज हवा चली और उस तेज हवा से पानी, समुद्र का पानी दो भाग हो गया और बाइबल कहती है कि पानी दीवार जैसा दोनों तरफ खड़ा हो गया और सूखा रास्ता बीच में से बन गया। ये जो कार्य परमेश्वर ने किया था वो हमारी सोच विचार से बढ़कर था। अरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों के लिए आने वाले दिनों में, इन दिनों में ऐसा ही अद्भुत काम करने वाला है जो किसी भी इंसान ने, किसी भी राष्ट्र के लोगों ने सोचा नहीं होगा। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में अपने लोगों के लिए करने जा रहा है, क्योंकि हम भी इस फारो कहलाए हुए शैतान के बीच में, ये शैतानी लोगों के बीच में और इस मिस्र देश में, ये दुनिया कहलाए हुए मिस्र देश में हम रह रहे हैं। और परमेश्वर जब हमारा छुटकारा करेगा तो परमेश्वर भी हमारे लिए इस सृष्टि से एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो सीधा ऊपर स्वर्ग तक पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह इनके लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया था, वैसा ही परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए और दुनिया के हर एक विश्वास करने वालों के लिए एक ऐसा अद्भुत काम करने जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को यहां से उठाकर ले जाएगा और हमें उस जगह पहुंचाएगा जहां परमेश्वर हमारा यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। सूखी भूमि पर परमेश्वर ने उनके लिए सूखी भूमि बनाई और हम देखते हैं कि जब फारो और उसके सारी सेना उसके पीछे गई समुद्र के बीच में, उनको लगा कि हम भी ऐसा ही कर पाएंगे। देखो किस तरह परमेश्वर ने उनको उलझन में डाला, उनके परमेश्वर के शत्रुओं को उलझन में डाला और वे लोग भी आसानी से अंदर चले गए, लेकिन परमेश्वर की नजर उनके ऊपर थी। अद्भुत परमेश्वर, महापराक्रमी परमेश्वर उनके साथ में था और परमेश्वर की नजर उनके ऊपर थी। दिन में वो बादल के खंबे में, रात को आग के खंबे में परमेश्वर उनको रास्ता दिखाता था और जब तक इजरायली सेना पूरी तरह से समुद्र के बीच में से पार नहीं गई, परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहा। रात का समय था और प्यारे भाई और बहनों, इस तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। रात के समय में परमेश्वर ने उन्हें पार लेके गया समुद्र के बीच में से और ये इजराइल फारू की सेना उनके पीछे गई और बाइबल कहती है कि
परमेश्वर ने उन्हें बीच समुद्र में डुबाकर सबों का नाश कर दिया। उनके बड़े बड़े मजबूत रथ और घोड़े और जो भी उनको सामान जो कुछ था, हथियार, वो सबके सहित बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके शत्रुओं का नाश कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए और मेरे लिए उदाहरण के लिए रखी हुई है कि परमेश्वर जरूर आने वाले दिनों में इस दुनिया का फारो और उसकी सेना और उसके सारे दुष्ट लोग, जो लोग आज दुनिया को यीशु परमेश्वर ने बनाई दुनिया को, इन लोगों को अपने वश में, अपने कब्जे में करना चाहता है और इस दुनिया पर राज करना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, उस हमारे जो इस दुनिया का फारो शैतान और उसकी सेना को आने वाले दिन में परमेश्वर उस हालेलुया जगह पे भेजेगा जो जगह उनके लिए बनाई गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर जिसने फारो मूसा के लिए और इजराइल के लिए काम किया, वही परमेश्वर आज तुम्हारे लिए हमारे लिए काम करने जा रहा है। हम उसी दिनों में, उसी काल में और समय में रह रहे हैं जबकि कोई सोचता नहीं कि यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेके जाएगा। वो दिन, वो समय किसको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह यहाँ कार्य किया वैसा ही परमेश्वर तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी आने वाले दिन में कार्य करेगा। और हमें इस जैसे कि परमेश्वर ने उनको मिस्रियों के वश में से छुड़ाया, फारो के वश में से छुड़ाया, परमेश्वर तुम्हें और हमें इस महामारी के वश में से भी और इस मौजूदा संकट से तुम्हें और हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। चाहे खबरें कितने भी जो वर्तमान में या टीवी पर खबरें आती है, न्यूज आती है, वो कितनी भी बुरी होने दो, लेकिन अभी हमने भजन संहिता 100 में 112 में जो पढ़ा ना, उसमें क्या कहते हैं कि धर्मी लोग जो भी बुरे समाचार होते हैं उससे डरते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी बुरा समाचार होने दो, अब मोदी कहता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 1 अरब लोगों को कोरोना होने वाला है। कितना? 1 अरब, यानी कि 100 करोड़ लोगों को कोरोना होने वाला है। इसके लिए अब सबको मास्क पहनना है, सबको घर में बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। इसको कैसे पता चला कि 1 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों को कोरोना होने वाला है? ये कोई भविष्यवक्ता है? लेकिन देखो, शैतान उसका जाल फैला रहा है पूरी दुनिया पर। लेकिन वही हमारा परमेश्वर जिसने मूसा के जमाने में कार्य किया और मिस्रियों के वश में से, फारो के वश में से परमेश्वर ने उनके लोगों को छुड़ा, उसके लोगों को छुड़ाया, वही परमेश्वर तुम्हें और हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। महामारी हो या इससे भी भयंकर आने वाली कोई महामारी हो, हमारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो सफल प्रबल नहीं होगी। ये एक शुरुआत है, इससे भी भयानक बातें होने वाली। आप जानते हैं जो महासंकट का समय शुरू होगा, वो समय तो इससे भी भयानक होगा। उसके सामने मौजूदा संकट कुछ भी नहीं। हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर जिसने 30 वचन में लिखा है कि इजराइलों को मिस्र के वश में छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े देखा। क्या हुआ कि ये जो उसका पीछा कर रहे थे, उनको नाश करने के लिए, उनको वापस गुलाम बनाने के लिए उसके पीछे पड़ रहे थे, लेकिन वही समुद्र में मर पड़े और उनकी लाशें, उनकी बॉडी जो है वो समुद्र के तले, समुद्र के तट पर मरे हुए दिखे। इस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्रियों के वश में से और उनके शत्रुओं के वश में से छुड़ाया। और परमेश्वर ने इतिहास का बड़ा चमत्कार, बड़ा अद्भुत कार्य दिखाया और अपना पराक्रम दिखाकर परमेश्वर ने अपनी महिमा की और लोगों ने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। अरे भाई और बहनों, इस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो समय काम किया था। इसी वचनों पर विश्वास करेंगे कि अंत के दिनों में भी मेरा प्रभु यीशु मसीह जब उसके लोगों का छुटकारे का समय आएगा तो वैसा ही अद्भुत कुछ काम करने वाला है। हालेलुया। हमारे लिए भी ये अंधकार को हटाकर और जितनी भी सारी रुकावटें हैं उसको निकाल कर, दूर करके प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया से पार लेके जाएगा। हालेलुया। उस कनान देश में, जो देश तुम्हारे लिए और हमारे लिए बनाया गया है, वो जगह जिसका सदियों से लोगों को इंतजार है कि वहां जहां हमारा परमेश्वर रहता है, हमारा स्वर्गीय नगर, उस नगर में हम प्रवेश करने वाले हैं।
Praise the Lord. So प्यारे भाइयों बहनों, ये उदाहरण जो हमारे लिए रखा हुआ है, विश्वास करें कि परमेश्वर तुम्हारे लिए और हमारे लिए और दुनिया के सारे कलीसिया के लिए ऐसा ही अद्भुत कार्य करेगा और तुम्हारे लिए मेरे लिए रास्ता बनाएगा। Praise the Lord. जहां आज तो आपको लगता है कि कोई रास्ता मेरे लिए नहीं दिख रहा है, सारे रास्ते बंद है, मेरा कैसे होगा, मेरा क्या होगा, लेकिन जरूर परमेश्वर आज जो तुम विश्वास के द्वारा इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु इसी महीने में आने वाले दिनों में अद्भुत रास्ता खोल देगा और तुम्हारे लिए वो काम करेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। बस सिर्फ विश्वास करके खड़े रहो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता खोल देगा जो आज आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर ऊपर बैठे बैठे तुम्हारे लिए मेरे लिए रास्ता बनाता है, तुम्हारे लिए मेरे लिए भलाई की योजना बनाता है, तुम्हारे लिए मेरे लिए अद्भुत योजना बनाकर आशीष के ऊपर आशीष देता है। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे लिए इन दिनों में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें आप खुद पढ़े और इसमें से आपको प्रभु जरूर कुछ न कुछ बातें करेगा। एक तो कोई वचन या प्रकटीकरण आपको मिलेगा जिससे जिसको आपको ताकत मिलेगी, आपका विश्वास और बढ़ेगा। तो आप उस पर स्टडी और कर सकते हैं और प्रभु जरूर तुम्हें आशीष देगा। हम अगले उदाहरण पर बढ़ेंगे। अगले उदाहरण पर हम जाने वाले हैं कि यहोशुआ की पुस्तक में क्या हुआ। यहोशुआ का पुस्तक में हम जाएंगे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे यहोशुआ के बारे में। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 and from verse 12 to 21, 12 से 21। बुक ऑफ जोशुआ, यहोशुआ की पुस्तक और 6वीं अध्याय फ्रॉम वर्स 12 to 21। யோசுவா அதிகாலமே எழுந்திருந்தான். ஆசாரியர்கள் கர்த்தரின் பெட்டியை சுமந்து கொண்டு போனார்கள். தொனிக்கும் 7 எக்காலங்களை பிடிக்கிற 7 ஆசாரியர்களும் எக்காலங்களை ஊதிக்கொண்டே கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக நடந்தார்கள். யுத்த சன்னத்தரானவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னாலே நடந்தார்கள். பின்தண்டோவெனில் எக்காலங்கள் ஊதப்படுகையில் கர்த்தரின் பெட்டிக்கு பின் சென்றது. 2ஆம் நாளிலும் பட்டணத்தை ஒரு தரம் சுற்றி வந்து பாளையத்திற்கு திரும்பினார்கள். இந்தபடி 6 நாளும் செய்தார்கள். 7ஆம் நாளில் அதிகாலமே கிழக்கு வெளுக்கும் போது எழுந்திருந்து அந்த பிரகாரமே பட்டணத்தை 7 தரம் சுற்றி வந்தார்கள். அன்றைய தினத்தில் மாத்திரம் பட்டணத்தை 7 தரம் சுற்றி வந்தார்கள். 7ஆம் தரம் ஆசாரியர் எக்காலங்களை ஊதுகையில் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி, ஆர்ப்பரியுங்கள், பட்டணத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். ஆனாலும் இந்த பட்டணமும் இதில் உள்ள யாவும் கர்த்தருக்கு சாபத்தீடா இருக்கும். நாம் அனுப்பின ஆட்களை ராகாப் என்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியால் அவளும் அவளுடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிற அனைவரும் மாத்திரம் உயிரோடு இருக்க கடவர்கள். சாபத்தீடானதில் ஏதாகிலும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறதுனாலே நீங்கள் சாபத்தீடாகாதபடிக்கும் இஸ்ரவேல் பாலத்தை சாபத்தீடாக்கி அதை கலங்க பண்ணாதபடிக்கும் நீங்கள் சாபத்தீடானதற்கு மாத்திரம் எச்சரிக்கையா இருங்கள். சகல வெள்ளியும் பொன்னும் வெண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் செய்யப்பட்ட பாத்திரங்களும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானவைகள், அவைகள் கர்த்தரின் பொக்கிஷத்திலே சேரும் என்றான். எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோட முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. உடனே ஜனங்கள் அவரவர் தங்களுக்கு நேராக பட்டணத்தில் ஏறி பட்டணத்தை பிடித்து பட்டணத்தில் இருந்த புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் வாலிபரையும் கிழவரையும் ஆடு மாடுகளையும் கழுதலையும் சகலத்தையும் பட்டய கருக்கினால் சங்காரம் பண்ணினார்கள். யோசுவா தேசத்தை வேவு பார்த்த 2 புருஷரை நோக்கி, நீங்கள் அந்த வேசியின் வீட்டிலே போய் நீங்கள் அவளுக்கு ஆணையிட்டபடி அந்த ஸ்திரியையும் அவளுக்கு உண்டான யாவையும் அங்கே இருந்து வெளியே கொண்டு வாருங்கள் என்றான். ஆமென். आमीन। बाइबल कहती है कि इजरायलियों के डर के मारे यरीहो के जो फाटक थे वो बंद किए गए थे। कोई भी बाहर या अंदर नहीं जा सकता था, कुछ आशा नहीं थी वहां। और यरीहो की दीवारें आपको बताना चाहता हूं कि इतनी चौड़ी थी कि उसके ऊपर से बड़े बड़े रथ चलते थे, इतनी चौड़ी थी। और वो दीवारें गिराना या दरवाजे खोलना, दरवाजे भी इतने लोहे के मजबूत हुआ करते थे, जैसे किले के फोर्ट के दरवाजे होते हैं ना, वैसे मजबूत हुआ करते थे। लेकिन यहां देखते हैं कि जब इजरायली वहां गए और उन्होंने सुना कि
ये इजरायली लोग, हिब्रू लोग यहाँ आए हैं, तो उन्होंने उस नगर के दरवाजे बंद कर दिए और उनकी शहरपनाह इतने बड़ी थी कि उसमें से कोई गिरा नहीं सकता था, उसको कोई नाश नहीं कर सकता था। लेकिन इस निराशाजनक हालात में एक विश्वास करने वाला व्यक्ति वहां था जिसका नाम योशुआ है, और योशुआ आपको पता है मोसेस का राइट हैंड था। हालेलुया। और मोसेस का अभिषेक उसके ऊपर था और परमेश्वर के द्वारा भी उसको अभिषेक किया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाद योशुआ मेरे लोगों को कनान देश में पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां हम देखते हैं कि परिस्थिति निराशाजनक है। यहां कोई आशा नहीं दिख रही है कि उस नगर में हम प्रवेश कर सके या इस नगर को हम ले सके। लेकिन यहां विश्वास करने वाली बात ऐसी है कि परमेश्वर उनसे कहता है, सुन, यहोवा योशुआ से कहता है, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीर समेत उन सबको आप तुम्हारे वश में कर देता हूं। आई विल गिव all the kings and the strong people, the strong men into your hands. मैं, परमेश्वर कहता है, निराशाजनक स्थिति है, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है, डरो मत, डरो मत, मैं वो काम करूंगा जो तुम सोचते भी नहीं। यहां भी परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया है जो इंसानी ताकतों से या इंसानी बुद्धि से बाहर है। आज के टेक्नोलॉजी के सामने बारूद लगाते हैं तो पत्थर वगैरह टूटते हैं और दीवारें टूटते हैं या बिल्डिंग तोड़ी जाती है। आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो आज कोई भी दीवार गिराना या कोई बिल्डिंग तोड़ना या फिर कोई किला तोड़ना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन उस जमाने में के बारे में सोचो कि इतनी बड़ी भयानक चौड़ी दीवार को तोड़ना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिखाया, वो भी एक ऐसी चीज की जो इंसान की बुद्धि से बाहर। सोचना यानी कि नामुमकिन है कि ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि मैं तो उनको, यरीहो को और उसके राजा को और उसके शूरवीरों को तुम्हारे वश में कर देता हूं। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी? तो परमेश्वर की योजना यहां लिखी हुई कि जिस तरह परमेश्वर ने योशुआ को आज्ञा दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हालेलुया, वैसे योशुआ ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर काम किया और उस आज्ञा को मानकर उसने लोगों को तैयार किया कि परमेश्वर कहता है कि मैं उन सबको तुम्हारे वश में करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ करना है। बिना कुछ किए, बिना विश्वास और बिना कृति यानी कि एक्शन, फेथ एंड एक्शन दैट गोज टुगेदर, ओके, फेथ और एक्शन। तो इन्होंने फेथ भी किया और जो परमेश्वर ने कहा उसको माना और वैसा ही उन्होंने किया। और क्या कहा कि 6 दिन तक तुम इस नगर को तुम लोग क्या करना, नरसिंगे लेकर तुम उसके चारों ओर उसके ओर घूम देना। 4 वचन में लिखा है और ऐसा लिखा है कि 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंग के लिए वे चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। 6 दिन एक बार उनको नगर के उस दीवारों के सामने घूमना था और बाइबल कहते 7वें दिन 7 बार चक्कर मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार परमेश्वर ने उनको जैसे कि कहा था कि याजकों को आगे और फिर उसके पीछे जो दूसरे लोग थे, साधारण लोग जो गाने वाले या बजाने वाले, नरसिंगे फूंकने वाले, वो उनको कहा कि तुम इस तरीके से यरीहो के नगर के चारों ओर चक्कर मारना। और फिर बाद में इस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं यहाँ की दीवार को तोड़ डालूंगा और उन्हें तुम्हारे वश में कर दूंगा। जिस तरह का कहा था 12 वचन में हम कहते कि योशुआ सवेरे उठा, वेरी अर्ली,
ओके, बहुत जल्दी सुबह उठा, याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। ओके, और उन 7 याजकों ने मेंढों के सींगों के साथ नरसिंग के लिए हुए यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते चले गए, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूम कर छावनी में लौट आए। इस प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था। देखो व्यवस्था, देखो, आगे याजक, उसके पीछे हथियारबंद पुरुष, और फिर पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे, यहोवा के संदूक के पीछे पीछे वो याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। ये सारी बातें एक विश्वास का दर्शक है। ये विश्वास की बातें हैं। जो बातें दिखती नहीं आगे, वो जैसे माने वो देखते हुए वो काम कर रहे थे, और इतनी बड़ी दीवार नाश करना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए आसान रास्ता बनाया। और फिर 7वें दिन बाइबल कहती है कि 7वें दिन 15 वचन में, बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वो 7 बार घूमे, और दिन नहीं। जिस तरह परमेश्वर ने कहा था, जैसी आज्ञा दी थी, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया, और परमेश्वर ने उनके लिए वो काम किया। और बाइबल कहते हैं कि जब योशुआ ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया। एक समय तय किया गया था, जब तक योशुआ ने कहा नहीं कि तुम जय जयकार करना, क्योंकि वो काम होने से पहले जितनी भी बातें परमेश्वर ने कही थी, वो उस आज्ञाओं को पूरा करना उनके लिए जरूरी था। वैसे ही इसमें से सीखने लायक है कि तुम और हम अपने जिंदगी में किसी बड़ी चीज में विजय पाने से पहले या कोई बड़ा काम करने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के रास्ते में चलना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना, ये जब हम करेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे और मेरे जीवन में असंभव को संभव बनाएगा। हालेलुया। ये बातें जो है ना, जिस तरह उन्होंने किया व्यवस्था के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार, कब जय जयकार करना है, कब नरसिंगे फूंकना है, कब क्या करना है, सब उन्होंने वैसा ही किया। और प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। यहां तक कि राहाब वेश्या, जो एक वेश्या थी, परमेश्वर ने उसके भी दिल में कार्य किया। और आपको पता है कि उसने किस तरह भेदियों को घर में छिपा कर रखा था, उस पर भी परमेश्वर ने दया कर दी। और उसी राहाब वेश्या का नाम आज हम हिब्रू की पुस्तक में हम लिखे हुए देखते हैं। जो भी अच्छा काम उसने किया, परमेश्वर के लोगों को, भेदियों को छिपा के रखा, और उस अच्छे काम की वजह से राहाब को भी परमेश्वर ने आशीष दिया, और उसका परिवार भी उसके द्वारा बच गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 20 वचन में हम देखेंगे, 20 वचन में 20, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगों के शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। एक ऐसा काम जो मनुष्यों के लिए नामुमकिन है। ऐसे नरसिंगे फूंकने से या फिर आवाज करने से, जय जयकार करने से दीवार नहीं गिर सकती थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों की स्तुति और आराधना में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ भी करेगा, हालेलुया, कर सकता है। इसमें से सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के लोग जब विश्वास करते हैं, और परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी बातें करते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर यरीहो की दीवार, या फिर लाल समुंदर हो, या फिर यरदन नदी हो, या फिर फारो और फारो की सेना हो, शैतानी कोई ताकतें हो, तुम्हें और हमें रोक नहीं सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा था कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज कितने सारी ताकतें चर्च के खिलाफ में काम कर रही है, प्रार्थना बंद करने पर तुली हुई है। सारे राष्ट्रों में दुष्ट ने ऐसा जाल फैलाया है कोरोना की वजह से कि प्रार्थना सभाएं बंद करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना
कई प्रकार से कर रहे हैं, जंगलों में कर रहे हैं, अपने अपने घरों में कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थना हर जगह दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर स्तुति आराधना हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने नरसिंगे फूके, जय जयकार किया, और जैसे कि नरसिंगों का आवाज और जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी, बाइबल कहती कि नगर की दीवारें जो थी वो गिर पड़ी, शहरपना नींव से गिर पड़ी। इस तरह परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, भेड़, बकरी, गदहे जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। ये सब परमेश्वर अपने लोगों के खातिर करता है, जो उसके विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर महान कार्य करता है। सो प्यारे भाई बहनों, ये नगर, ये शहरपना तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्या दिखाते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वासियों के लिए कोई भी बात असंभव पर नहीं होती है। सिर्फ हमारा काम है विश्वास और कर्म करना, विश्वास और कार्य करना, यानी कि फेथ एंड एक्शन, ये दोनों जब बातें होती है तो परमेश्वर जरूर तुम्हारे मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और हर एक रुकावट, हर एक दीवार, इसके पार हम देख नहीं सकते कि आगे क्या है, लेकिन परमेश्वर वो दीवार को हटाकर आगे जो भी आशीष तुम्हारे लिए, हमारे लिए होता है, वो आशीष और वो भरपूरी प्रभु तुम्हें और हमें दे देता है। हालेलुया। वो छुटकारा, जब हमको लगता है कि मेरा छुटकारा कहां से आएगा, लेकिन वो छुटकारा हमारा परमेश्वर यहोवा से आएगा। भजन संहिता 121 में कहता है, मैं मेरी दृष्टि पर ऊपर पर्वत की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता मेरा परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर, उसी के ओर से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। My help comes from the Lord God, the creator of heavens and earth. तो तुम्हारी में सहायता, मेरी सहायता और कहीं से नहीं आएगी, इस दुनिया से नहीं आएगी, हमारे रिश्तेदारों से नहीं आएगी, लेकिन हमारी सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, वो हमारे लिए दीवारें हटाएगा, वो हमारे लिए यरदन नदी को दो भाग करेगा, वो हमारे लिए लाल समुद्र दो भाग करेगा। ये सारी बातें इसलिए लिखी हुई है कि हम विश्वास करें, और ये विश्वास करें कि जिस परमेश्वर ने वहां उस भूतकाल में कार्य किया था, वही परमेश्वर इस वर्तमान में भी अद्भुत कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें प्रभु किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। आज जिस प्रकार से विश्वासी लोग संकट से और कष्ट से जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दुनिया भर के कोने कोने में बहुत सारे राष्ट्रों में मसीह लोगों को सताया जा रहा है। अमेरिका में भी पास्टर लोगों को प्रार्थना नहीं करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कैलिफोर्निया में एक पास्टर जिसकी उम्र 81 ईयर थी, उसको कहा कि प्रार्थना बंद करो, नहीं तो तुम पर एक्शन लेकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बोलता है कि तुम जेल में डालो, कुछ भी करो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। उसने वो वर्चुअल नहीं, एक्चुअल प्रार्थना, यानी कि लाइव प्रार्थना वो लेता है। लेकिन वहां का गवर्नर कहता है, क्रिश्चियन देश का गवर्नर कहता है कि प्रार्थना बंद करो, प्रार्थना करने का परमिशन नहीं है। लेकिन सेवक ने कहा, मैं प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मारो या कुछ भी करो। ये विश्वास इन दिनों में कि कुछ भी हो, आज प्रभु की दया से, मैंने कहता हूं मेरे वजह से नहीं, मेरे परमेश्वर की वजह से हमारे उद्धार मसीह कलीसिया की सारी प्रार्थना सभा शुरू है, सिवाय हमारी ये जो एक प्रार्थना जूम पे चलती है, लेकिन बाकी हमारी सारी प्रार्थनाएं इन दिनों में हम चला रहे हैं प्रभु की दया से, और प्रभु ने संभाला भी है, आपकी प्रार्थना भी है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज दुनिया पर संकट गहराता जा रहा है, संकट गहराता जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं छुटकारा नजदीक आ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों के संकट बढ़ गए, और फारूक और उसके लोग, उनके सैनिक उनको तकलीफ देने लगे, और उनकी तकलीफ और उनकी पुकार, दुख में, संकट में उनकी पुकार, बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर पहुंची, यहोवा के पास पहुंची, और यहोवा खुद उतर के आया। क्या ऐसा ही है क्या? देखने के लिए परमेश्वर आया, और परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। 2000 साल पहले उसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए अपनी जान दे दी, और अपना लहू बहाया, और उद्धार का रास्ता उसने खोल दिया, और हमें इस धरती पर
कुछ दिन के लिए रख दिया है, लेकिन अब यहाँ से हम पार जाने वाले हैं। हमारे लिए ये लाल समुद्र, ये दीवार, ये यरीहो की दीवार, ये हटने वाली है, गिरने वाली है, सारे बंधन टूटने वाले हैं और परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ से पार लेकर ऊपर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। यही प्यारे भाई पर विश्वास है और इसी विश्वास से तुम और हम जी रहे हैं और अंत तक इस विश्वास में तुम बने रहना। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। उसने आज्ञा मानने वालों का भला किया। परमेश्वर के भेदी जो वहां गए थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, यानी अच्छे व्यवहार करने से द्वारा परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से भी पापियों को आशीष मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आशीर्वाद मिलता है। इस व्यभिचारी स्त्री को, इस वेश्या को परमेश्वर ने आशीष दिया और उसके विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसने सुना था कि ये यहूदी लोग, ये हिब्रू लोग, उनका परमेश्वर कोई अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। उस वेश्या ने सुना था कि इन हिब्रुओं का परमेश्वर किसी अन्य देवताओं के समान नहीं है, वो एक अद्भुत महान परमेश्वर है और उसका डर और भय उसके मन में समाया था और उस भय को मानकर विश्वास के द्वारा राहाब ने उनको छिपा के रखा। और बाइबल कहती है कि जब नष्ट किया गया, यरीहो के लोगों को बाल बच्चों और पशुओं के साथ नष्ट किया गया, तब राहाब और उसके घर के लोग बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा और मेरा भला काम जो हम किसी के लिए करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप में कितने भी दुष्ट हो सकते हैं, हमारे जीवन में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई करते हैं, वो भलाई करना, वो अच्छा काम करना तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरे सिर पर, तुम्हारे सिर पर एक आशीष हो सकता है। हालेलुया। और तुम्हारा और मेरा परमेश्वर हमें संकट के दिन बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। संकट के दिन उसको बचाया गया और उसका पूरा परिवार बचाया गया। देखा जाए तो उसके व्यभिचार की वजह से, वेश्या व्यवसाय की वजह से तो प्रभु की नजर में दोषी थी, लेकिन इसलिए कि उसने आज्ञा पालन करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया और इसलिए उसको कुशल से रखा गया। इन अंतिम दिनों में प्यारे भाई और बहनों, तुम और हम जो भी अच्छा काम करेंगे, जरूर परमेश्वर मेरे साथ, तुम्हारे साथ और जो भी विश्वास करने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग, उनके साथ प्रभु भलाई का काम करेगा और उनके लिए सारे बंद दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी दरवाजे बंद हैं, यरीहो की दीवार आपके लिए सामने खड़ी है, या लाल समुद्र आपके सामने खड़ा है, या फिर यरदन नदी आपके सामने खड़ी है, या साक्षात फारो जैसा शैतान या उसके लोग उसके सामने, आपके सामने खड़े हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारे लिए, मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। जो भी वचन को विश्वास से ग्रहण करेगा, प्रभु उनके लिए आने वाले दिनों में जरूर काम करेगा और उनके लिए नए दरवाजे खुले हुए आप देखेंगे। ये मेरा एक विश्वास है और ये प्रार्थना है और ये आशीष है कि हमारे कलीसिया के लोगों को ये मिले और जितने भी लोग परेशान हैं उन सबको परमेश्वर इस परेशानी से बाहर निकालेगा और उनका भला करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपका भला करे। आइए हम प्रार्थना करें और अपना दान अपने हाथ में लेकर रखना और जरूर प्रभु आपको सहायता करेगा। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस समय तुझे हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा सम्मान करते हैं। जितने भी लोग तेरे साथ प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना में सहभागी हुए, प्रभु परमेश्वर उन सबों पर तेरा आशीर्वाद मांगता हूँ। और इस समय तेरे लोगों ने तेरी स्तुति आराधना की है, तेरे वचन को सुना है, जिसके द्वारा वचन प्रभु परमेश्वर, जो वचन हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करता है, उस वचन के द्वारा तेरे लोगों के विश्वास और बढ़े। और जिस तरह राहाब वेश्या ने अद्भुत कार्य प्रभु परमेश्वर विश्वास दिखाया और उसका परिवार बच गया, प्रभु हमें भी तेरे लोगों के साथ भलाई करने के लिए सहायता कर। मेरे प्रभु पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस समय तेरे लोग तेरे भंडार में जो भेंट अर्पण करेंगे उनकी भेंट को स्वीकार करना और परमेश्वर हालेलुया, जो ऑफरिंग बॉक्स है उसमें उन प्रभु परमेश्वर वो जो डालेंगे उनके लिए जरूर उनका काम धंधा नौकरी को आशीषित करना, उनका परिवार प्रभु सुरक्षित रखना, हर एक प्रकार की बीमारी से और दुष्ट शक्ति से और आपत्ति विपत्ति से इनकी रक्षा करना। फिर से अगले संडे हम मिलेंगे प्रभु, तब तक हम सबों की रक्षा करना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, तो अपने दया करुणा से सुन और ग्रहण कर। सब लोग कहे आमेन। आमेन। आमेन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमेन। ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। Praise God.